The next speaker is another very fiery opponent of communalism, Shri Jitendra Awad, MLA of the Nationalist Congress Party, NCP. He was a former minister in the state government also. Two very important points I just wanted to say about Jitendra Awad ji. One, Ishrat Jahan's family stays in his constituency and he has been fully supporting Ishrat Jahan's family ever since that false encounter that took place under the Narendra Modi regime. I was personally present for a huge rally that he had conducted in Mumra on that issue, and we should congratulate him for his staunchness. Second thing, when B.M. Purandare was given the Maharashtra Bhushan Award by the Fadnavis government, one of the first statements condemning the issuance of this award came from Jitendra Awad. That also I would like to Shri Jitendra Awad. Honorable D. Raja, Sitaram Yechury ji, Ashok Dhaule ji, my friend Kapil Patil, and this august gathering. I am finding a odd man out. Sitaram Yechury, D. Raja, Kapil Patil, Ashok Dhaule, and Jitendra Awad. डर लगता है. I don't know why Ram Kumar called me. How did he think I am competent enough to speak in front of D. Raja and Sitaram Yechury? I really don't know. Because I'm used to talking in a very rash, common man's language. And the crowd which I see today makes me a little scared, a little worried of my language. I don't know how I'm going to present myself. But anyway, if you like it, and if you don't... I'll make you feel comfortable. That makes me more uncomfortable, then probably you will not like it. Anyway, we are passing through a tough time. I am a product of 1977. I was just 12 years old. When I was just learning about, I was a fan of, I used to read newspapers and I was just reading about emergency and then the emergence of Jayaprakash Narayan. I happened to be present in a meeting of Jayaprakash Narayan in 1977 when I was just 12 years old. And I from the mic had raised the slogan, Andhere mein ek Prakash, Jai Prakash, Jai Prakash. That was the start of my political passion. 40 साल गुजर चुके हैं. फिर उसके बाद छात्र राजनीति में हम गए. छात्र राजनीति से निकल के युवा राजनीति में आए और फिर मुख्य धारा में हम चलते रहे. मुझे नहीं पता कि हमारी पार्टी की विचारधारा, उसकी विचारधारा, उनकी विचारधारा क्या है. मैं अपने विचारधारा पे ठाम हूं और उससे लगाव रखता हूं और उस पे चलने की कसम खाता हूं. मैं सोचता हूं, कुछ लिख के लाया हूं. आपके सामने बोलते समय थोड़ा सा लिखना पढ़ना पड़ेगा. कुछ गलती हो गई तो उसके ऊपर ज्यादा चर्चा हो. The disease of intolerance is not communicated only in religious groups. I have seen it infect racial groups and even whole nations, often called as patriotism. Intolerance always fences people out. It creates one group, we call us, and the other, we call them. Us और them की लड़ाई अब भारत में शुरू हो गई है. मुझे खेद इस बात का है, जो परिपक्वता राज्यकर्ताओं में दिखनी चाहिए, the maturity to be seen in the ruling class is not to be seen in India nowadays. When they talk about funding the educational institutes and talking at the level of there should be no student politics in the state funded institutes, what the rot they are talking about. ये वर्ग व्यवस्था की लड़ाई है, क्योंकि जो वर्ग जेएनयू में जाता है, जो वर्ग उन यूनिवर्सिटियों में जाता है जहां सरकारी पैसे का इस्तेमाल होता है, वो वर्ग दलित है, वो वर्ग पिछड़ा है, वो वर्ग उपेक्षित है. क्या आप उनकी शिक्षा बंद करना चाहते हो? क्या उन आज लड़कों को, उन लड़कियों को जिनको राजनीति से लगाव है, उनको राजनीति के दरवाजे बंद करना चाहते हो? चाहते क्या हो? हम इस वर्ग राजनीति के खिलाफ है. हम कन्हैया जैसे लोग तैयार करेंगे और ये तैयार करने की फैक्ट्रियां हैं. आपने पहला खेल शुरू किया अंबेडकर पेरियाई ग्रुप से.
फिर आप पहुंच रहे रोहित वेमुला तक। आज मैंने अनुपम खेर का एक विधान सुना, आपने सुना होगा, you must have seen on the Twitter. He said that the only class which talks about intolerance is those who have a glass of milk and a glass of champagne in the hand. Now I don't know what exactly Anupam Kher meant about. But the class which talks about intolerance either has to hang himself like Rohit Vemula or has to face a sedition charge like Kanhaiya. What are you talking, Mr. Anupam Kher? ये जो माहौल आपने खड़ा किया, ये माहौल इसके लिए है कि आप डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं। अपने वादे तो बहुत किए, लेकिन इन वादों से आप जब टकरा रहे हो, लोग जनता पूछ रही है भाइयों मित्रों बताओ क्या हुआ है, तब आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। जब जनता पूछ रही है 15 लाख का क्या हुआ, तब आप कुछ नहीं बोल पाए। और शुरू से आपको ये पता था कि जो जुमले आपने कहे वो सच्चाई में उतर नहीं सकते हैं। आपने जो भी कहा था वो झूठ कहा था, इसका पता आपको था। और इसलिए जैसे ही सत्ता में आप आ गए, उसी दिन you started love jihad, you started घर वापसी, you started hunting people on beef, meat, and you started a climate of hatred. Yes, I agree to what Kapil Patil says, that they are the products of Nathuram ideology. But anyway, you have to link them to Hitler, you can't forget that. मुझे आज भी उसकी एक कविता याद है, जिस कवि ने कहा था जर्मनी में कि मैं सोचता रहता जब मेरे बाजू वाले घर से किसी को उठा लेके जाते, मैं मेरे बीबी से कहता कि हो सकता है कि इसने कुछ हिटलर के खिलाफ लिखा होगा। मैं सोचता रहता रात को कि कल तो उसको भी लेके गए, तो मेरे बीबी को समझाता, उसने एक कविता लिखी थी जिसमें वो हिटलर के खिलाफ बोल रहा था। करते 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 पूरा घाव उठा के लेके चले गए, और दिन वो मेरे घर पे आए तो मैंने मुड़ के देखा तो पूरे घरों पे ताला लगा हुआ था। हमारी भी हालत उससे कुछ कम नहीं है। नेशनलिज्म के नाम पे जो बवाल खड़ा किया जाता है, इसे इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। जिस तरीके से पहले 2 दिन जेएनयू के मामले में जो डॉक्टर कैसेट अपने दलालों के माध्यम से जो पेश किए गए, उससे जो माहौल इस देश में तैयार हो गया, अब चाहो या न चाहो वो हमारे खिलाफ था। हम उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब सच्चाई जब सामने आती है, तब वो दिखाने का काम वो लोग नहीं कर रहे, तो जो चिल्ला के हमें एंटी नेशनल ब्रांड कर रहे थे। हम इशरत जहां के बारे में बोलते हैं तो लोग हमें एंटी नेशनल बोलने लगे हैं, लेकिन वो लोग अडवाणी को नहीं एंटी नेशनल बोलते हैं, जो मनमोहन सिंह को जाके 26/11 की सुबह पे कर एक दिल्ली बुला के इस मामले को गलत तरीके से जांच की जा रही है, ऐसा स्वयं मनमोहन सिंह को जाके अडवाणी जी ने कहा था। जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पकड़ा गया मालेगांव बम ब्लास्ट में, उसको नासिक लाया गया, तो उसको मिलने और कोई नहीं आया था। इस देश के आज के गृह मंत्री स्वयं प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मिलने नासिक आए थे। क्या धर्म के नाम पे इतना भेदभाव करोगे? जिस पैगंबर का नाम अल हलीम है, अल हलीम का दूसरा मतलब है इंटॉलरेंस, क्या आप उस धर्म को सीधे आतंकवाद से जोड़ दोगे? कोई धर्म, कोई जात आतंक नहीं सिखाता। आतंक एक विकृति है। और मुझे लगता है इन बातों को मद्देनजर रखते हुए जो कुछ इस देश में हो रहा है, वो शायद अगर साफ करने का समय आएगा तो only powerful force which I can see is the students, because the history relates to it. Mr. D. Raja will speak on this also. That in 1972, after the Indo-Pak War, Indira Gandhi had a landslide victory in 1972, where Atal Bihari termed her as the next Durga of the modern times. In 1974, there was this Navnirman Andolan in Gujarat and Bihar, and it was badly handled by the center and the state, which was governed by Congress. That gave rise to the discontent in the country. 90% of the states were ruled by Indira Gandhi. In came emergency, and in 1977 she lost.
whenever you have mishandled the student politics, it has given a way out, and the power equations have always changed in India, and I think this is the start of it. You played with Periyar, you played with Rohit Vemula, and you are playing with Kanhaiya. You don't underestimate the student powers. And I read in Indian Express, I think this is organized by Ram Kumar and the state students, right? The next target is TISS. So you have decided on targets. अब शिकारी बन गए हो, शिकार ढूंढ रहे हो देश में कि किसकी शिकार करनी है। लेकिन इस देश के आवाम और इस देश की जनता राजनीति में भले आज संख्या में नहीं दिखती होगी डर के मारे, लेकिन वक्त आता है तो शिकार करती है। ये इंदिरा गांधी के समय इस देश ने दिखा दी। जिस तरीके से बातें हो रही है, अकलाक दादरी में जो हुआ, उसके बाद शर्मा का जो भाषण था, जो शर्मा मिनिस्टर है एचआरडी का, किसी का राज्य मंत्री है, कंथारिया का जो परसों आगरा में भाषण हुआ, आप क्या जताना चाहते हो इस देश में? कौन से व्यवस्था की बात कर रहे हो आप? When you have failed on all directions, when you have failed on all parts of Indian democracy, you are just igniting hatred, जो बहुत आसान है। जो ढोले साहब ने कहा की मी पुरंदरेला विरोध केला, पुरंदरेला विरोध माझा त्याच्या पुस्तकावर होता, वैयक्तिक पुरंदरे माझा शत्रू नव्हता, पण ज्या पद्धतीने शिवाजी महाराजांचं चारित्र्य त्यांनी लोकांसमोर दिलं आणि शिवाजी महाराज म्हणजे मुसलमानांचे शत्रू होते दाखवण्याचा प्रयत्न केला, त्याच्यामुळे जे महाराष्ट्रामध्ये विध्वंसक आणि विद्वेषाचे वातावरण तयार झाले, त्याच्या विरोधात माझी भूमिका होती आणि त्या भूमिकेशी मी आजही ठाम आहे। चारित्र्य संपन्न राजाला तुम्ही खुश करून टाकलं, तुम्ही घराघरामध्ये तो शिवाजी पोचवलात जो खरा शिवाजी नव्हताच, जो शिवाजी सेक्युलर होता, जो शिवाजी इथली धर्म व्यवस्था, इथली जातीय व्यवस्था लाथाडून टाकली होती, तो पहिला राजा होता ज्याने इथली जाती व्यवस्था नष्ट करून टाकली। इथला धनगर, इथला वंजार, इथला तेली, इथला महार, इथला दलित, हे त्याच्या सैन्यामध्ये सरदार आणि त्या लेवलला काम करत होते। जर त्याचा मुसलमानांवर विश्वास नसता तर औरंगजेबाला भेटायला जाताना त्यांनी मदारी मेहतारला बरोबर घेतलाच नसता। पण आम्ही मात्र शिवाजी शिकलोच नाही। आमच्या शाळेतला शिवाजी म्हणजे आवर हिस्ट्री वॉज लिमिटेड टू ओनली टू थिंग्स। शिवाजी महाराज गए, तलवार चलाई, शाहिस्ते खान के उंगलियां निकाल डाली, दूसरा पन्ना खोलो। शिवाजी महाराज गए प्रतापगढ़ पे, शेर के नखून से अफजल खान का पेट निकाला। Now that is the end of Shivaji. Shivaji was a great administrator. Shivaji was a great management guru. He was the first one to think that India can be attacked from the seaside. He was the first man who had a full-fledged army, a maritime army. He was the first man to have declared in 1659, when there was acute famine, कि हमारी तिजोरियों में जितने भी पैसे हैं खाली कर दो, लेकिन मेरे यहाँ का एक भी किसान खाली पेट मरना नहीं चाहिए। If he was anti-Muslim, in the same year, that was in 1661, when Vichapur was famous, अकाल था, वहां पर बारिश नहीं गिरा और महाराष्ट्र में बारिश हुआ, तो उसने कहा कि यहां से 5000 गोनियां अनाज की विजापुर भेज देना। और उस इतिहास को आप पूरे हिंदू पदपतशाही का निर्माण करने के लिए शिवाजी का जन्म हुआ है, उसको हम कैसे मान करें? एक जमाना था जब तुम्हारी किताबें हमारे घर भी पढ़ी जाती थी, क्योंकि हमारे बाप दादा पढ़े ही नहीं थे, आपने उनको स्कूल में ही नहीं जाने दिया था। अब हम पढ़ने लगे हैं तो हम उस किताब का स्वीकार क्यों करें? जो किताब में आपने शिवाजी महाराज जो हमें नहीं जचता है, वो शिवाजी महाराज आपको, उसे लगता है कि लड़ाई इतनी आसान नहीं है। मुझे आप जैसे लोगों से भी अपेक्षाएं हैं। ये लड़ाई सिर्फ एसी हॉल में बैठ के अब लड़ी नहीं जा सकती है। भाषण सुन के, तालियां बजा के अब ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। आपको भी उतरना होगा, वरना मैंने जो वो जर्मन कहावत कही है वो आने में कुछ देर नहीं लगेगी।
वो दिखा रहे हैं हर पल. The arrogance of power can be seen in their body language. He has not bothered to make a statement on JNU. और बहुत इमोशनल खेल खेलते हैं. स्टूडेंट्स वर्सेस सोल्जर्स. बहुत बहुत बड़ा इमोशनल, एक बड़ा बड़ा सवाल पैदा कर देते लोगों के दिल में कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, वहां देखो जवान लड़ रहे हैं. अरे भैया, उस लड़ाई से समय तो आप पाकिस्तान जा रहे थे ना, तब ये सोचा नहीं है आपने. और स्टूडेंट्स आर प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दे आर सोल्जर्स ऑफ इंडिया. दे आर प्रोटेक्टिंग इंडिया विद इट्सेल्फ. क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को आप बदलना चाहते हो. जो पहला एडवर्टाइज निकला इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बड़े होशियारी से आपने सेक्युलरिज्म शब्द निकाल दिया था. क्या ये हम भूलेंगे? हम नहीं भूलेंगे. हमें इसे याद रखना है, और ये याद ही हमारी आगे के आने वाले दिनों की ताकत है. और वो ताकत अगर हमें कहां से मिले इन दिनों में, तो मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैं कन्हैया को अपना लीडर मानने लगा हूं. जो ऊर्जा उसके भाषण से मिली कि मेरी मां, रविश कुमार का आप अगर वीडियो पढ़ेंगे सुनेंगे, तो उसने कहा कि मनीष कुमार जब उसके घर पे गया था, एनडीटीवी का पत्रकार, तो उसके मां ने कहा कि बेटा, आज तुझे पिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, कि मेरे घर में आज ना तो चाय की पाउडर है ना दूध है. उस लड़के का मजाक उड़ाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, उसके गरीबी का. आज अपने खाली पेट से ही आदमी क्रांति का नारा लगा सकता है. ग्लास भरी हुई बियर की ग्लास लेके 8 बजे के बाद लोग पॉवर्टी के ऊपर बात कर सकते हैं. वो सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ के अपना मत बनाते हैं. उनके मासेस के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ के देश की सियासत और राजनीति के बारे में सोच नहीं सकते. जैसे आज आप यहाँ बैठे हैं, कभी जाम्बोरी मैदान भी जाइए, कभी परेल की उस गढ़ में भी जाइए जहां आपको गरीबी की माला आहे की तुर लाडीचा भाव काय झालाय. आज तुम्ही गोमांस बंद करून टाकलं. आज डाळी महाग झाल्या. प्रोटीन्स मिळणार कुठं सर्वसामान्य माणसाला? वेर इज गोइंग टू गेट प्रोटीन फ्रॉम? नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. The issues which are concerned with the common man are just deviated. You are talking on issues which are non-issues, and you are making them into issues, because you know कि जब सवालात पैदा होंगे लोगों के दिल में कि आम आदमी के जो सपने थे वो सपने पूरे मिट्टी में मिले हुए हैं, तो आपके राजनीतिक प्रवास के ऊपर सवाल निशान पैदा हो जाएगा. इसलिए इस भारत में आज द्वेष का माहौल पैदा किया जा रहा है. और मला वाटतं कि Ram Kumar and his friends have organized this. To tell you very openly, Ram Kumar, when I started from, I never in my life must have prepared so many things here. Never. When I met Sitaram Yechuri, I told him, oh, I am too uncomfortable. I don't know what I am going to speak. But then I thought, चलो इनके सामने भी बैटिंग करके देखते हैं. And I would just like to quote the way our great Amitabh Bachchan, Narendra Modi ji is speaking. They both are very good friends. He told a BBC reporter, when the BBC reporter asked him that why is India being so intolerant? And Mr. Narendra Modi ji answered that India was the land of Buddha and Gandhi and would never accept anything that went against the basic social values. Now look, I think intolerance is one word which has been discussed in India right from the time history has been known to us. Let's start with Buddha. The way his followers were butchered, that's written down in history. But when we used to look at his butchered followers, he used to say, if a person foolishly does me a wrong, I will return to him the protection of my boundless love. The more evil that comes from him, the more good will go from me. I will always give off only the fragrance of goodness. That is what Buddha says. And when he was asked कि क्या आपको कैसा लगता है जब इतने मुसलमानों को मारे, इतने मुसलमान मर गए, the reply was, कुत्ते का पिल्ला भी मरता है तो वो दुख होता है. And you are talking about Buddha.
Now let's see what Gandhiji had in his mind. Intolerance is itself a form of violence and an obstacle to the growth of democratic limit. I think if it starts growing, what Gandhiji says will come into reality. Democracy in India will no longer survive. We are going towards authoritarian rule. I don't think anybody has the guts to challenge him in his cabinet also, because he's hardly there. For the first time after going through the cabinet archives, for the first time after going through the parliamentary archives, here is the first prime minister who doesn't attend the parliament at all. I have read in the archives that whenever Ram Manohar Lohia, Firoz Gandhi used to talk, if Nehru was on his lunch table or having dinner or having anything, he used to just drop it and go and sit in the parliament to hear them. The basic principle of Indian democracy is, I agree to disagree. आप उससे ही खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि आपके प्रति किसी के आपके दिल में किसी के प्रति सम्मान ही नहीं है। आप व्यक्तिगत द्वेष से भरे हुए हो, कि जिस विचारधारा से आपका जन्म हुआ है सबको इतना सिखा दिया है। और हमारी विचारधारा जो बुद्धा से आई है, हमारी विचारधारा जो महात्मा गांधी से आई है, वो विचारधारा सिर्फ हमें प्यार सिखाती है, बदले की भावना से राजनीति करना ये भारत में कभी जाना ही नहीं है। मैंने परसों मेरे नेता को एक खत लिखा और कहा कि सर, हे सोडाचं जे राजकारण आहे, द्वेष भावनेचं जे राजकारण आहे, ह्या राजकारण बघितलं की मनाला भीती वाटते, कारण का असं राजकारण बघण्याची सवयच नव्हती। राजकारण हे खेळीमेळीचं असावं, राजकारणामध्ये गिव्ह अँड टेक असावं। आय शुड रिस्पेक्ट युअर व्हॅल्यूज, आय शुड रिस्पेक्ट युअर कन्सर्न. If at all I don't agree to it, I should not disrespect you. This is what is happening in parliament. Previously, MLAs and MPs used to give character certificates. Now we have started giving certificates of nationalism and patriotism also. Thank you, sir. But then when I am coming to the end of that whole, probably you were told that he is concluding. Anyway. So I think we have to think. हमें सोचना होगा। कठिन समय आ रहा है, कठिन समय से लड़ने की ताकत हमें अपने आप में जतानी होगी। मैं अपना भाषण समाप्त करने के पहले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था इंटॉलरेंस के बारे में और व्यवस्था के बारे में, वो दो पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं। On page number 368, partition of India, he says in the constitution, if Hindu Raj becomes a reality, then it would be the greatest menace to this country. Whatever Hindus may think, actually it does not make a difference. That Hinduism a danger to independence, equality and brotherhood. Thus, it is an enemy of Indian democracy. This is Dr. B.R. Ambedkar. And exactly the contemporary Golwalkar says about it. What does he say? And the followers are following that route. Mala vatta, I disagree to what Kapil Patil says. The ideology which silently RSS and everybody who follows RSS are walking on is Golwalkar's ideology. Where he says, the non-Hindu people of Hindustan must either adopt Hindu culture and language, must learn and respect and hold reverence to Hindu religion, must entertain no idea but of those of glorification of Hindu race and culture. In a word, they must cease to be foreigners or may stay in the country wholly subordinated to the Hindu nation, claiming nothing deserving, no privileges, far less any preferential treatment, not even citizens' right. This is from the book named Bunch of Thoughts. We are the nation, we the nation, redefined. Nation redefined. Yeah. ये जो विचारधारा है, ये द्वेष की जो विचारधारा है, इसके ऊपर तो चल रहे हैं। कभी मुसलमानों पे, कभी दलितों पे, कभी अत्याचारित उपेक्षित वर्गों से खेल खिलवाड़ करना, यही भूमिका को लेके वो इस देश की सियासत आगे बढ़ा रहे हैं। और इससे अगर लड़ना होगा तो एक कन्हैया का काम नहीं है, एक रोहित वेमुला से आप ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते। आपको अपने आप में कन्हैया देखना होगा, जो कन्हैया बनके आपको बाहर निकलना होगा। मुझे लगता है कि उस भाषण के बाद इस देश में कहीं कहीं कन्हैया बनने को तैयार है। वक्त आपकी राह देख रहा है।
नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. थँक्यू व्हेरी मच जितेंद्र आव्हाडजी. अतिशय रोखठोक आणि सडेतोड भाषणाबद्दल आपल्या सगळ्यांच्या वतीने पुन्हा एकदा टाळ्यांच्या गजरामध्ये त्यांचा आभार मानतो.